भारत राष्ट्रीय समिति की निजामाबाद रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि बीसी डिक्लेरेशन जारी करने वाली कांग्रेस पार्टी ने निजामाबाद जिले से एक भी बीसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। निजामाबाद में मुनक्किद गोसांगी कबीलों के रूहानी इज्तिमा में की कविता ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दलितों के लिए हुकूमत ने जो स्कीमात नाफिज की है उन तमाम स्कीमात को गोसांगी जातों के लिए भी लागू किया जाएगा। उन्होंने दलित बंधु से मुताल्लिक पाए जा रहे खदशात पर वाज़ेह किया कि दलित बंधु चंद अफराद को दिया गया है, लेकिन ये सभी को किस्तों में दिया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में बीडी वर्कर्स के लिए पेंशन स्कीम नाफिज नहीं है। सिर्फ तेलंगाना ही वो वाहिद रियासत है जहां बीडी कारकुनों को पेंशन दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीसी डिक्लेरेशन जारी किया है, बीसी के मसाइल हल करने के वादे कर रही है, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी ने निजामाबाद हलके से एक भी बीसी उम्मीदवार को नामजद नहीं किया। के कविता का कहना है कि केसीआर के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने की सूरत में ही पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ किया जा सकेगा। ఎవ్రీ మంత్ జాబ్ మేళా పెడితే హైదరాబాద్ నుండి 400 to 500 పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ని తీసుకొచ్చినాం. అందులో కూడా ఏంది 0 to పీజీ అసలు చదువుకోని యువకుల దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే పీజీ వరకు అన్ని రకాల ఉద్యోగాల అవకాశాలు ఉండేటటువంటి జాబ్ మేళాలు నిర్వహించినాం. అంతేకాదు ఎన్నడూ కళలో కూడా అనుకోలే ఐటీ నిజామాబాద్కు వస్తుందని. ఇవాళ ఐటీ నిజామాబాద్కు తీసుకొచ్చినాం. రేపు ఇంకా పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు కూడా తీసుకొస్తాం. కంటిన్యూస్ గా ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధికి మీరు తోడ్పాటు అందించి కేసీఆర్ గారి సర్కార్ని మళ్ళొకసారి ఆశీర్వదించి దీవిస్తే ఒక ఆత్మీయతతోని, ఒక అమ్మతనంతోని, ఒక ప్రేమతోని, ఒక అప్నాపంతోని నడిచే సర్కార్ ఇది. కేసీఆర్ అంటే మీవాడు, మీకోసం కొట్లాడిన బిడ్డ, చావు నోట్లో తలబెట్టి తెలంగాణ తెచ్చినటువంటి బిడ్డ. మరి అటువంటి బిడ్డ మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి అయితే సౌత్ ఇండియా మొత్తంలో ఒక రికార్డ్ అవుతుంది. అది ఇంతవరకు దక్షిణ భారతదేశంలో ఎవరు మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి కాలే. కేసీఆర్ గారిదే పెద్ద రికార్డ్ అవుతుంది. మరి అందుకని కేసీఆర్ గారికి మీ ఆశీర్వాదం ఉండాలి, మీ దీవార్తి ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను. అట్లనే ఎప్పుడైనా ఎన్నికలు ఉన్నా లేకున్నా మీతో నిలబడేదాన్ని నేనే. ఎన్నికలు ఉన్నా లేకున్నా మీతో నిలబడే పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. కాబట్టి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులను మీరు ఓటేసి గెలిపించాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుతూ, మరి ఇంత శ్రమ తీసుకొని ఇక్కడ దాకా వచ్చినటువంటి గోసంగి సంఘ సభ్యులకు, ప్రతి మండలం నుంచి ప్రతి గ్రామం నుండి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర కూడా నేను సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने बेलमपल्ली में दुर्गम, चेन्नैया और चेन्नूर में बाल का सुमन को शिकस्त देने की अवाम से अपील की है। 30 नवंबर को मुनक्किद असेंबली इंतखाबात के लिए टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर बेलमपल्ली में एक अवामी जलसे को मुखातिब किया और अवाम से बेलमपल्ली से गडम विनोद को वोट देने की और चेन्नूर से विवेक वेंकटस्वामी को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने विवेक वेंकटस्वामी की कोशिशों की सताइश करते हुए कहा कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट उनकी काविशों के नतीजे में ही कारगर साबित हुआ है। टीपीसीसी सरबराह ने कल्वाकुंडला खानदान पर मंचियाल जिले को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि विवेक और विनोद के जीतने पर ही खित्ता तरक्की करेगा। కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఎవరు ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఎవరికి ఆ బాధ్యత ఉంది అని నేను ఆలోచన చేసిన. ఈ పెద్దపల్లి అన్న, ఈ ఆదిలాబాదు జిల్లా అన్న, గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు వినిపించే ఏకైక పేరు కాకా వెంకటస్వామి గారు. కాకా వెంకటస్వామి గారు ఈ గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలబెట్టి అతి సామాన్యుడు, పేద కుటుంబంలో పుట్టిన
ప్రజలకు సేవలు అందిస్తూ ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తే జాతీయ స్థాయి నాయకులుగా ఎదగొచ్చు అని చెప్పి వెంకటస్వామి గారు నిరూపించారు. ఈ గడ్డ మీద ప్రజలు, ఈ నేల, ఈ గాలి వెంకటస్వామి గారిని నిలబెట్టిండ్రు, గెలిపించిండ్రు. అందుకే మిత్రులారా, నేను ఆలోచన చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీలో వెంకటస్వామి గారి కుటుంబం అంటే పట్టాదారులు అని చెప్పి నేను ఆలోచన చేసిన. భూమికి ఎక్కడైనా భూ యజమాని హక్కులు పట్టాదారుల చేతుల్లో ఉంటాయి. ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టాదారులుగా గాంధీ కుటుంబం ఎట్లనో తెలంగాణకు కూడా గడ్డం వెంకటస్వామి గారి కుటుంబం ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టాదారులు. वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राष्ट्र समिति और AIMIM को वजीर आजम की कठपुतलियां बताते हुए बेगमपेट और सिकंदराबाद जैसे इलाकों में कट आउट्स नस्ब किए हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर वो हफ्ते को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जलसे-आम से खिताब करने वाले हैं। वजीर आजम के शहर हैदराबाद के दौरे के मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बेगमपेट और हाईटेक सिटी में कठपुतलियां लगाई हैं, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक हाथ से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR और दूसरे हाथ से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी भारत राष्ट्र समिति और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोनों जमातों को मरकज में बरसर इख्तियार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहकर निशाना बनाती रहती है। ऐसे में ये कट आउट सबकी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। पपेट्स ऑफ मोदी के नाम से चलाई गई इस मुहिम के वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और आवाम की जानिब से इस पर मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में उलमा व मशाइखीन ने भारत राष्ट्र समिति और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद का ऐलान किया है। शहर हैदराबाद के होटल अनमोल कॉन्टिनेंटल वाक़ सैफाबाद में तेलंगाना के 4 अजला के उलमा व मशाइखीन और सज्जादगान का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर सेहत हरीश राव, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने इजलास में शिरकत की। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से इजलास में शिरकत करने वाले उलमा व मशाइखीन ने शहर हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद का ऐलान किया है। इजलास के दौरान वजीर खजाना हरीश राव व दीगर को अक़लियतों के मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया गया। वजीर खजाना हरीश राव ने इस मौके पर BRS हुकूमत के आइंदा भी मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की यकीन दहानी करवाई है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रायन गुट्टा MLA उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने ललिता बाग और अतराफ व अकनाफ के महलों में इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी अपने फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी के हमरा असेंबली हल्के चंद्रायन गुट्टा में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उन्होंने हफ्ते को ललिता बाग और अतराफ के महलों का पैदल दौरा किया। आवाम से मुलाकात करते हुए उनसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देने की अपील की। मुहिबान मजलिस की जानिब से अपने चहीते कायद अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अवाम ने अकबरुद्दीन ओवैसी को यकीन दहानी करवाई है कि वो AIMIM के हक में ही अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस इंतखाबी मुहिम में नूरुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर, एरिया प्रेसिडेंट, इब्तदाई मजलिस के सदूर व दीगर ने भी हिस्सा लिया।
मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने याकुतपुरा असम्बली हल्के के महलेजात में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। अमजदुल्ला खान खालिद हल्का असम्बली याकुतपुरा से एमबीटी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद हफ्ते को याकुतपुरा असम्बली हल्के के दबीरपुरा में सोते पीर की दरगाह से मोमिन हाई स्कूल तक पैदल दौरा किया। आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक को वोट देने की अपील की। इंतखाबी मुहिम में मजलिस बचाओ तहरीक के सदर मजीदुल्लाह खान फरहत व दीगर ने भी हिस्सा लिया। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बोरा बंडा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। साबिक क्रिकेटर व साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में हल्का असम्बली जुबली हिल्स के उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। उन्होंने जुमा को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और हफ्ते को बोराबंडा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनसे कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की पुरजोर अपील की। कई महलों में अवाम ने अजहरुद्दीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें दुआएं देकर उनकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाएं पेश की। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अक़लियतों के साथ भोंडा मजाक करार देते हुए कहा कि इससे वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस तजब्ज़ुब का शिकार है। मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी और उसकी असास पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के तयक़ुन से रियासत में तबक़ावारी, नफरत और कशीदगी पैदा हो सकती है और कांग्रेस का कल्चर ही नफरत, कशीदगी, फसादात है। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे के दौरान कुछ अफराद केसीआर के साथ रहकर समाज में अपना मुकाम बनाते रहे और वही आज केसीआर और बीआरएस के खिलाफ बात कर रहे हैं। इम्तियाज इसाक ने वाज़ेह किया कि जो कॉलेज बंद हुए हैं वो हुकूमत की कसौटी पर नहीं उतर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक फैकल्टी, बिल्डिंग के बगैर बहुत से कॉलेजेस फर्जी थे और फर्जी तलबा के नाम पर फीस हासिल की जा रही थी। इम्तियाज इसाक ने कहा कि कांग्रेस ने अपने डिक्लेरेशन में टिमरीज का कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अगर तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आती है तो टिमरीज स्कूल्स बंद हो जाएंगे। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में ओवरसीज स्कॉलरशिप का जिक्र न किए जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अक़लियती बजट पर तनकीद की, जबकि कदीम तरीन जमात को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कर्नाटक में अक़लियतों की आबादी 1 करोड़ है और वहां अक़लियती बजट 2000 करोड़ रुपए है, जबकि तेलंगाना में 50 लाख की आबादी के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस पार्टी से सवाल किया है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जिन औकाफी जायदादों पर कब्जे किए गए थे, क्या वो जायदादें वापस की जाएगी। TSMFC सदर नशीन ने कांग्रेस से मुतालबा किया है कि वो अपनी 6 जमानतों को एक तरफ रख दे और सिर्फ 2 बातों की जमानत दें कि होने वाले सीएम का नाम और उस बात की जमानत के जो भी सीएम होगा वो 5 साल मियाद तकमील करेगा और दौरे हुकूमत फिरका वाराना फसाद से पाक रहेगा। इम्तियाज इसाक ने कहा कि तेलंगाना की आवाम बाशऊर है और अब वो झूठे वादों, खोखले दावत से मुतासिर नहीं होंगे। बीआरएस तीसरी मरतबा बरसर इख्तिदार आएगी। भारत राष्ट्रीय समिति की अलवाल डिवीजन कॉर्पोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी ने मल्काजगिरी हल्के के उम्मीदवार मर्री राजशेखर रेड्डी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। शांति श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी की खवातीन रहनुमाओं और कारकुनान के साथ अलवाल में लोताकुंडा, आदर्श नगर और रामचंद्रपुरम कॉलोनी व दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनसे बीआरएस के मल्काजगिरी उम्मीदवार मर्री राजशेखर रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की।
अफजलगंज पुलिस ने तेलंगाना स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो के अहदेदारों के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए बैन रियासती मंशियात फरोशों की टोली को बेनकाब किया है। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शेंडालिया ने मीडिया को बताया कि टोली का कलीदी मुलजिम रियासत कर्नाटक से ताल्लुक रखता है और वो अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर नाइट्रावेट नामी नशा आवर गोलियां फरोख्त कर रहा था। सीपी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से नाइट्रावेट गोलियों के 11 डब्बे और 22 SKF सिरप जब्त की गई है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में हफ्ते की अलग सुबह पटाखों की एक दुकान में आग लगने के वाक़े में एक नौजवान के मुलविस होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की छानबीन में जुट गई है। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के बंडलागुड़ा जागीर कॉरपोरेशन के तहत सन सिटी में एक पटाखों की दुकान में आग लग गई और आग ने तेजी से फैलकर करीबी फूड कोर्ट को भी अपने लपेट में लिया। वहां सिलेंडर फटने से आग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। इब्तिदा में ये समझा जा रहा था कि आतिशबाजी की वजह शॉर्ट सर्किट है, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी कैमरों की जांच पर ये इंकशाफ हुआ है कि एक नौजवान पटाखों की दुकान पर आया था। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है कि नौजवान का इस हादसे से कोई ताल्लुक है या नहीं। अगर नौजवान का हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो जाए वक़्फ़ों पर क्यों गया था। पुलिस ने इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया है और तमाम जावियों से तहकीकात में जुट गई है कि क्या इसमें कोई साजिशी पहलू है। MRPS महाजना सोशल पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रजी हैदर एडवोकेट ने सिरपुर हल्के की आवाम से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार RS प्रवीण कुमार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की पुरजोर अपील की है। MRPS महाजना सोशल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रजी हैदर एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए सिरपुर असेंबली हल्के के मुसलमान भाइयों से अपील की कि वो सिरपुर हल्के से BSP उम्मीदवार RS प्रवीण कुमार को वोट दें। उन्होंने कहा कि 75 सालों से मुसलमान कई नाम नेहाद पार्टियों को वोट देते आए हैं। सभी जमातों ने सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। रिजर्वेशन फराहम करने के नाम पर महज मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है। मोहम्मद रजी हैदर एडवोकेट ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों, SC ST और BC तबके से वाबस्ता अफराद ने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन एक मखसूस तबका इख्तिदार पर काबिज है और मुसलमानों समेत दीगर कमजोर तबकात पर जुल्म ढा रहा है। उन्होंने इन हालात में सेक्युलर पार्टी के उम्मीदवार RS प्रवीण कुमार को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील की। कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, अभी 30 तारीख को जो असेंबली का इलेक्शन है उसमें डॉक्टर RS प्रवीण कुमार साहब को हाथी के निशान को वोट दे के जिताने की गुजारिश है, क्योंकि 75 ईयर्स हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद होकर 75 साल हुआ। 75 साल से मुसलमान लोग वोट डाल रहे, कभी वो पार्टी को, कभी ये पार्टी को, कभी ये पार्टी को, उसको सब पार्टी अपने को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे को नहीं दे रहा। कोई 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोलता, उन धोखा देता, और दूसरा एक करता, उन देता। आपस में हिंदू मुस्लिम झगड़े लड़ाइयाँ लगा के अपने को अलग करके इस तरीके से हमारे को 75 ईयर्स से हम नुकसान करते रहे। हमारे कांशी राम साहब, जिसकी जितनी भारी संख्या उसकी उतनी भागादारी, जो अपना हम 14% है, हमारे को बजट में कई लाखों का बजट हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करता, उसमें 14% हमको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर के लिहाज से हमारे को हक है, हमको मिलना चाहिए, मगर कोई पार्टी हमारे को नहीं देती है आज तक। और उसी तरीके से
लोन्स में हो या दूसरे हाउसेस में हो, किसी में भी हो, हमारा हक बराबर नहीं मिला जाता, हमारा हक तलफी किया जाता। इसलिए भाई साहब, ये इलेक्शन में प्रवीण कुमार साहब को जिताना, वोट डाल के हद से ज़्यादा वोट डाल के जिताने की सबसे गुजारिश कर रहा हूँ। और इस देश की आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी करे सो मुसलमान लोग यहाँ पे 90% हम लोग कुर्बानी करें, SC ST BC लोग भी कुर्बान करें, मगर जो एक कौम है वो कभी कुर्बानी नहीं करी, मगर वो आज पूरा पावर एंजॉय कर रही और हमको मार रही। लिहाजा उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग SC ST BC माइनॉरिटीज़ के सदारत में जो पार्टीज आगे बढ़ रहे, उन पार्टीज का हाथ को मजबूत करना, उनको पावर में लाना, पावर में लाके अपना हिस्सा लेना। इस तरीके से मैं यहाँ के मुसलमानों को गुजारिश कर रहा हूँ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।